गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको फिर से आज की सुबह का सलाम। मेरे लिए एक बार फिर से आनंद की बात है कि खुदावंद के वचन को आज की सुबह आपके जीवन में बोने बा रहा हूं। खुशी होती है, आनंद मिलता है ये देखकर कि आप इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप इन्हें बांटते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारी और आपकी जिंदगी के लिए ये बरकत का वसीला है, आशीष हैं। आज खुदावन के ऐसे कलाम से आपको बरकत देना चाहूंगा। दिस मॉर्निंग आई एम once again glad to bring the word of God to you and to sow this word in your life. I'm so happy that God gives me this opportunity. And the word that I'm going to share with you today, it is from the book of Proverbs, chapter 16 and verse 24. आज का वचन जो आपके संग बांटने जा रहा हूं वो नीति वचन की किताब उसका 16वां बाब उसकी 24वीं आयत है। कुछ इस तरह से लिखा है, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते की नाई प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul and healeth to the bones. जो मन भावने वचन होते हैं, बहुत से वचन दुनिया में छोड़ देते हैं। लोगों की बातें आप सुनते होंगे, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। बहुत बार ऐसी बातें होती हैं जो बाहरी चोट से ज्यादा गहरी हो जाती हैं। हमारी शायद बाहरी चोट लगती है, उसका घाव भर जाता है, हील हो जाता है कुछ मंथ्स में, कुछ ईयर्स में। पर आपने क्या कभी अनुभव किया है कि वचनों की चोट बड़ी गहरी होती है? वचनों की ऐसी दुनिया के बीच में, ऐसी सिचुएशन के बीच में, ऐसे सर्कमस्टेंसेस के बीच में जहां पे आप ढेर सारे वचन सुन रहे हैं, नेगेटिव बातें सुन रहे हैं, वहां पे कुछ वचन ऐसे भी होते हैं जो मधु के छत्ते की तरह जिंदगी को मीठे रखते हैं। और आपको मालूम है उनका अंजाम क्या होता है? उनका जो रिजल्ट है वो है कि वो हमारी हड्डियों को हरा भरा कर देते हैं। We face lot of words, we hear lot of words daily. Many of the words must be of great disappointment for your life. There are people, those who come and they say all sort of things. We get hurt, and you know what happened when we get hurt externally, like something happened on our body or something. The scars, they remain for months or maybe for a couple of years and then they go. But when we get hurt by the words, the scars are really hard to go. You always remember that, that day that person said this thing to me. I still remember. It happens. We can remember that thing for years and years and years. Even after 10 years, if they are talking to somebody, you can tell that person, you remember on that day you said this thing to me. So this is what the power of word is. But in the midst of all these words that are there to bring disappointment, to bring fear, to bring uncomfortable things in a life, there are few words which seems like honeycomb. These words, they are full of honey. In a sense, like they are full of blessing. And they revive our lives. ये हमारी जिंदगी को दोबारा रिवाइव करते हैं। बहुत से वचनों के बीच में ऐसे वचन हैं जो हमारी और आपकी जिंदगी को रिवाइव करते हैं। ऐसे ही वचन खुदा के कलाम में है। ऐसे ही वचन, ऐसी ही आशाएं खुदा के वचन में है। These honeycomb, these words that are like honeycomb, they are there in the word of God. Pick it up. Pick up your Bible. Start reading it. Start looking into the word of God. पढ़ने लगिए, परमेश्वर के वचन में देखने लगिए और खुदा बाप आपको बरकत देगा। ऐसे लोगों के संग रहिए जो आपकी जिंदगी में बरकत बोलना जानते हो, आशीष बोलना जानते हो। किसी विश्वासी को ढूंढिए। Look for a believer who can speak these kind of words into your life, who can bring the word of encouragement in you.
गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आइए दुआ करें खुदा आपके इस वचन के लिए जो उसने मुझे और आपको दिया है, और मुझे यकीन है उसके द्वारा मुझे और आपको बरकत दे रहा है। लेट्स प्रे। Father, we thank you that you have once again, Lord, fed us with your word. Lord, there are so many words all around us. They bring disappointment, they hurt us, they bring a spirit down. But Lord, there are words that encourages us also. There are words which are like honeycomb. There are words which are full of life. Father, we thank you for these kind of words, the words that you have kept in your word. Lord, may we be able to read it. May we always spend a time in it so that we receive these words of life. प्रभु, होने दे हम तेरे वचन को पढ़ें। धन्यवाद, तूने इस खराब शब्दों से घिरी हुई दुनिया में भी सामत के वचन रखे हैं, आशीष के वचन रखे हैं। हमें तौफीक दे कि हम इन्हें पढ़ें, हम इनकी ओर देखें जो तेरे कलाम में लिखा है, और उससे आशीष पाने वाले हो सकें। ऐसे वचनों से घिरे रहें जो हमारी जिंदगी में बरकत लाएं। आपके वचन के लिए, आपके कलाम के लिए पिता आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम कल फिर मिलेंगे, खुदा आपकी आराधना करेंगे। याद रखिएगा, इस प्रार्थना को, इस वचन को किसी और के संग शेयर जरूर करिएगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे।